we will continue. I am sharing my screen. Now see, we had studied the types of tissues in plant. Types of plant tissue. तो प्लांट टिश्यू जो है, these are meristematic tissue. Okay. So meristematic tissues are the primary tissues that are gives rise to the मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, याद है किसी को? कैन यू टेल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव द लार्ज न्यूक्लियस, thin cytoplasm, large nucleus, thin cytoplasm, and they shows the fast cell division, that is mitotic cell division, उसमें बहुत ही फास्ट होता है. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गिव्स राइज टू द, आफ्टर द सेल डिवीजन द न्यू cells are forms, and these cells, it has been take a special type of function. It grow in size. Once it takes the special type of role in the special type of function, it converts into the permanent tissue. Then permanent tissues are of two types: simple permanent tissue and कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के हैं. कौन कौन से बता सकते हैं? Which are the three types of simple permanent tissue? Second link. तू ऍडमिट केलं का? Now see, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue कौन कौन से? Last time we had studied all these things: sclerenchyma, parenchyma, and collenchyma. Sclerenchyma, then parenchyma, and collenchyma. Okay, and complex permanent tissues, these are of two types: xylem and phloem. यहां तक हमने पढ़ा था. ओके, we had studied up till now. We will continue the next part. Here are some definitions. Xylem is a complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पूरा डिटेल हमने पढ़ा है. अब देखिए xylem. Xylem क्या होता है? Xylem is a complex permanent tissue which can conduct the water from root to stem. It conducts the water only in one way. And phloem, these are also the vascular tissues which can transport the sugar and food material, other metabolic products, from the part where they are generated to the part where they are used. जहां पे प्रोड्यूस होते हैं फूड मटेरियल, शुगर, वहां से जहां जहां पे जरूरत है वहां पे ये फ्लोएम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? पहला तो जाइलम में कंडक्शन वन वे होता है, और जाइलम के ट्यूब्स जो होते हैं तो उसमें पार्टीशन नहीं होता है. यहाँ पे देख पा रहे हैं. अब फ्लोएम के जो ट्यूब्स होते हैं इसमें पार्टीशन होता है, एंड दे आर परफोरेटेड, दे आर हैविंग द स्मॉल पोर्स. And the transport of water through the xylem, it does not require the energy, but the transport of food material through the phloem, it requires the energy. ये मेन डिफरेंस है xylem और phloem के बीच में. xylem और phloem, इसमें देखिए अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं. These are the complex tissues. सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या फर्क बताया था? और मैंने सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या फर्क है, बता सकता है कोई? हाँ, simple tissues are made up of only one type of cell, and complex tissues are made up of more than one type of cell. This is the main difference between simple tissue and complex permanent tissue. अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग तरह के सेल्स टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसमें ट्रकीट्स है.
तो ट्रकिट्स, these are a long conducting cell which transport the water from roots to other part. Then vessel membranes are there. These are the vessel membranes, a long water conducting cell which dies when mature, leaving the lignified wall behind them. तो वेसल मेंबर जो है, इसमें जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। वेसल मेंबर के सेल्स कैसे होते हैं बच्चों? डेड होते हैं। एंड इट कंटेन्स द वॉल, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, परफोरेटेड वॉल्स इन बिटवीन द टू सेल्स। दो सेल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं और इनके बीच में एक परफोरेटेड वॉल होती है। परफोरेटेड मीन छेद, छेद वाली एक वॉल होती है जिसमें से वाटर मटेरियल कंडक्ट होता है। sieve tubes, these are the sieve tubes, the series of end to end joint cell through which conduct the food material takes place. तो sieve tube जो है, these are present only in phloem. sieve tube जो है सिर्फ phloem में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है एंड टू एंड इलोंगेटेड सेल होती है, एक सेल से दूसरी सेल ज्वाइंट होती है, जैसे हमने जाइलम में देखा था। और इसमें से फूड मटेरियल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। Campanian cell, these are the special parenchyma cell closely associated with the function of sieve tube. तो कैंपेनियन सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ओनली इन फ्लोएम। फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम फ्लोएम फ्लोएम पैरेनकाइमा के साथ फ्लोएम सिव ट्यूब, सॉरी फ्लोएम सिव ट्यूब के साथ ये सेल प्रेजेंट होते हैं। देन कैम्बियम, कैम्बियम इट इज द पार्ट a meristematic stem tissue where the cells are present which are responsible for the growth of plant. यहाँ पे बाहर जो है फ्लोएम होता है, इसके अंदर क्या होता है? जाइलम होता है, और इन दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है। Now again see the keywords. डाइकोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स के स्टेम में हमने डिफरेंस देखा था। ओके, नाउ सी द डाइकोटिलिडॉन स्टेम्स। यहाँ पे मेरे कर्सर के ऊपर भी आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग नहीं कर सकता हूं मैं। ये देखिए, दिस इज द स्टेम ऑफ डाइकोटिलिडोनस प्लांट, और इसमें ये जो सीरीज पैरामेडिकल एक सर्कल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वास्कुलर बंडल। ये क्या है? डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स के वास्कुलर बंडल्स है। वास्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है मोनोकोटिलिडोनस प्लांट, नौसी, ये है मोनोकोटिलिडोनस। यहाँ पे मेरे माउस के कर्सर के ऊपर ध्यान देना है। मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेम। ये फर्क है। मोनोकोटिलिडोनस में वास्कुलर बंडल जो है ये सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स। एंड in case of the dicotyledonous plant, vascular bundles are arranged in the series in a circular manner. ये फर्क है। These bundles are open, cells divides actively, and cambium is present in between the xylem and phloem. अब मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में कैम्बियम अब्सेंट होता है। कैम्बियम में सेल जो है, इसमें सेल डिवीजन होती है, देयरफॉर सेल्स विल नॉट डिवाइड एक्टिवली। The bundles, vascular bundles are scattered within the stem and they are closed. This ये डिफरेंस हमें याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हमें मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स और डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स के, ये दो डायग्राम जो है जिसके ऊपर मैंने माउस का कर्सर रखा था, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में जो है कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के स्टेम में कैम्बियम अब्सेंट होता है। इसलिए डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में सेल डिवीजन एक्टिवली होती है और मोनोकोटिलिडोनस में सेल डिवीजन एक्टिवली नहीं होती। और क्या फर्क है? डाइकोटिलिडोनस में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और इसमें कैम्बियम अब्सेंट होता है। कैम्बियम अब्सेंट होता है इसलिए इसमें सेल डिवीजन नहीं होती। अब फ्लोएम, फ्लोएम, व्हाट इज द फ्लोएम? फ्लोएम इज अ वास्कुलर टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। फ्लोएम में ये 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, याद रखना है। सिव ट्यूब्स,
companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma. What is the sieve tube? Sieve tube, the series of end-to-end jointed cells through which the conduction of food material takes place. इससे food material conduct होता है. और companion cell, स्पेशियल पैरेनकाइमा सेल क्लोजली एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ sieve tube. sieve tube के साथ जो है कैंपेनियन सेल जुड़े हुए होते हैं. फ्लोएम फाइबर्स, these are the plant tissues which transport the sugar and other metabolic product from leaves to other part of the plant. And phloem parenchyma, the living cell found between the sieve tubes and main function is to store the फूड मटेरियल. तो फ्लोएम पैरेनकाइमा में फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है और मेनली ट्रांसपोर्ट जो होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड टू sieve tube एंड वेरी स्मॉल अमाउंट थ्रू द फ्लोएम फाइबर्स. तो इस तरह से फ्लोएम जो है इसमें 4 प्रकार के सेल्स होते हैं. समझ में आया? कैंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द फ्लोएम. तो ये याद रखना है. विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम? देन sieve tube, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा. नाउ सी द जाइलम. जाइलम में 4 प्रकार के सेल्स हैं. ट्रकीट्स, वेसल मेंबर्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा. आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ये बात. इसको नोट डाउन भी करना जरूरी है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के सेल में क्या डिफरेंस है हमें पता होना जरूरी है. अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे. जाइलम ट्रकीट्स. तो जाइलम ट्रकीट्स क्या होता है? जाइलम ट्रकीट्स आर द वाटर कंडक्टिंग सेल विच ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. इसमें से वाटर कंडक्ट होता है लेकिन वाटर कंडक्शन बहुत कम मात्रा में होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कंडक्टेड थ्रू द वेसल मेंबर्स. देन ये जाइलम वेसल्स होता है, परफोरेटेड होता है, इससे ट्यूब्स तैयार होती है. जाइलम फाइबर्स. जाइलम फाइबर्स, these are the parts of the plant which also conducts the water. ये सभी कंडक्ट. और जाइलम पैरेनकाइमा. जाइलम पैरेनकाइमा ये लिविंग सेल्स होते हैं जाइलम के, बाकी सेल जो है वो डेड होते हैं. Xylem parenchyma is the living component in the xylem tissue which is present between the xylem vessels and xylem fiber. Xylem vessels और xylem fiber इन दोनों के बीच में xylem parenchyma होता है. इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हैं. These are the complex permanent tissue, xylem and phloem. Phloem has the 4 types of cell. Xylem also contains the 4 types of cells. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ट्रैक द लेबल्स टू द एप्रोप्रिएट इमेज. यहाँ पे 2 इमेजेस दिए, वास्कुलर बंडल्स इन डाइकोटिलिडोनस प्लांट और वास्कुलर बंडल इन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट. इसका डिफरेंस हमें यहाँ पे क्लियर होगा. अब ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स जो है वो किस में है? डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में है या मोनोकोटिलिडोनस प्लांट में? डाइकोट. वेरी गुड. Excellent. Vascular bundles are open in dicotyledonous plant and close in monocotyledonous plant. Variable in size. साइज आप यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो. वास्कुलर बंडल के साइज में वेरिएशन कहाँ पे दिख रहा है? डाइकोटिलिडोनस या मोनोकोटिलिडोनस? मोनोकोटिलिडोनस. अब देखिए वास्कुलर बंडल्स अच्छी तरह से डायग्राम को देखिए. Dicotyledonous plant, in case of the dicotyledonous plant, the vascular bundles are arranged in a circle and they are appears to be in same in size. और मोनोकोटिलिडोनस प्लांट के अंदर जो वास्कुलर बंडल्स है पेरी सर्कल के बाहर जो दिख रहे हैं ये इसकी साइज का छोटी है और सेंटर में जो वास्कुलर बंडल्स है उसकी साइज बड़ी है. Therefore, the vascular bundles are of variable size in monocotyledonous plant and that are of same size in dicotyledonous plant. Surrounded by epidermis. epidermis किसमें प्रेजेंट होता है? dicotyledonous plants में vascular bundles के अराउंड epidermis होता है या monocotyledonous? Excellent. Yes. In dicotyledonous plants, the vascular bundles are surrounded by epidermis and
These are not surrounded by epidermis in case of monocotyledonous plant. सेल डिवीजन, अब इसका आंसर बताइए मुझे, सेल डिवीजन किसमें होती है और किसमें नहीं होती है? मैं आपको एक हिंट देता हूं, कैंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट एंड दे आर प्रेजेंट इन डाइकोटिलिडोनस प्लांट। देखिए, नो सेल डिवीजन इन मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट में सेल डिवीजन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कैंपेनियन सेल्स जो है, देखो बच्चों, कैंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट, देयरफॉर देयर इज नो सेल डिवीजन, and companion cells are present in between the xylem and phloem in vascular bundle, therefore the cells are actively divided in case of dicot plant। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, xylem and phloem are separated by cambium। इसका आंसर तो मैंने अभी बता दिया, मोनोकॉट में है या डाइकॉट में? डाइकॉट। डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स के स्टेम में जो वास्कुलर बंडल्स है उसमें जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और कैम्बियम सेल जो है वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं। और मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के वास्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है, इसीलिए उसमें सेल डिवीजन भी नहीं होती है। ओके, एक्टिव सेल डिवीजन किसमें होता है फिर? अब इसका आंसर चाहिए मुझे। डाइकोट। Yes, very good. Why? Because cambium is present in the dicotyledonous plant, और कैम्बियम में ही क्या होता है? सेल डिवीजन होता है कैम्बियम से। क्लोज टाइप मोनोकॉट। मोनोकॉट, ये ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है? और स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, which vascular bundles are scattered in ground tissue? मोनोकॉट। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ना, देखो बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा है कि वास्कुलर बंडल्स जो है मोनोकॉट और डाइकॉट, ये डायग्राम्स आपके सामने आएंगे अभी, जस्ट वेट फॉर व्हाइल। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए आप, क्योंकि ये डिफरेंसेस है। ये क्या है? डिफरेंसेस है। अब देखिए, इसमें वास्कुलर बंडल जो है पूरे ग्राउंड टिश्यू, जिसको हम इसका सरफेस कहेंगे स्टेम का ये क्या है? कट, हम अगर हम स्टेम को कट करते हैं, एलएचएस उसका लेते हैं, और उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस तरह से वास्कुलर बंडल्स हमें दिखाई देते हैं, मोनोकोटिलिडोनस और डाइकोटिलिडोनस प्लांट। तो ये डिफरेंसेस है, जाइलम एंड फ्लोएम सेपरेटेड बाय कैम्बियम इन मोनो डाइकॉट, नॉट सेपरेटेड in monocot. Vascular bundles are open type in dicot and they are closed type in monocot. The vascular bundles are surrounded by epidermis in dicot and they are not surrounded by epidermis in monocot. The cells are actively divides due to the presence of cambium in dicot, and there is no cell division due to the absence of cambium is between xylem and phloem. तो कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वास्कुलर बंडल्स में, जाइलम और फ्लोएम इनके बीच में। समझ में आया? कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। वी आर स्टडिंग द बेसिस ऑफ लाइफ। अब हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमें। आज आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल आएगा, उस स्टडी मटेरियल को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। लास्ट टाइम आई फॉरगॉट टू सेंड यू द स्टडी मटेरियल। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब पहले मुझे बताइए, गिव मी द आंसर क्विक, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल परमानेंट टिश्यू? हाँ, द टिश्यूज इन विच ऑल द सेल्स आर अलाइक। ऐसे टिश्यू जिसमें सभी सेल एक ही तरह के होते हैं, उसे कहते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज तो हमने पढ़ा है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सेलेनकाइमा।
पैरेनकाइमा इसमें दो प्रकार के, सिंपल पैरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। सिंपल पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, these are the types of parenchyma. कोलेनकाइमा दे आर एंगुलर, लैक्यूनर और लैमेलर, इसकी साइज है। और टाइप्स ऑफ स्लेरेनकाइमा दो प्रकार के, फाइबर्स और स्लेराइड। तो परमानेंट टिश्यू जो है दो प्रकार के, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ होमोजीनियस सेल यानी एक जैसे सेल होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये हेट्रोजीनियस होते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के सेल होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम, स्यू ट्यूब है, ट्रकीट्स है, पैरेनकाइमा सेल्स है, तो ये आपको पढ़ना है। ओके। और ये जो परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। The meristematic tissues are cells of the meristematic tissues. They divides and then they grow in size. They lose the ability of division and converts into the permanent tissue. Okay. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है इसमें सेल डिवीजन फास्ट होता है। सेल डिवीजन होने की वजह से नए सेल बनते हैं, और नए सेल बनने की वजह से उनमें साइज में ग्रोथ होता है। When they grow in size, they take a particular function. And after that they converts into the permanent tissue. Once they convert into the permanent tissue, the cell lose the ability of dividing. Permanent tissue can be divided into two types based on the nature of constituent cells. तो परमानेंट टिश्यूज के दो प्रकार है, लेकिन परमानेंट टिश्यूज के सेल में फर्दर सेल डिवीजन नहीं होती है, ये बात याद रखना है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पहले पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज तीन प्रकार के, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेनकाइमा। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल्स विद द सेल वॉल व्हिच आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो पैरेनकाइमा सेल जो है इसमें स्पेशली फूड मटेरियल का स्टोर्ड होता है। तो ये आइसोडायमेट्रिक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका है, और इसमें सेल्यूलोज से सेल वॉल बनता है। और इसमें फंक्शंस क्या है? एक तो मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज का। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सम मटेरियल। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सेल वॉल है, इंटरसेल्यूलर स्पेस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन देम। जैसे कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल देखे थे, वो कॉम्पैक्ट थे, उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं थी। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो है इसमें जो सेल्स होते हैं इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं हम इंटरसेल्यूलर स्पेस। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब देखिए कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा लिविंग है, इसमें पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, स्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स होते हैं। ये बात याद रखनी है। It provides the mechanical supports to the growing part of the plants. तो plants को सपोर्ट करने का काम जो है स्पेशली कोलेनकाइमा सेल करते हैं। Assimilates the food if it contains chloroplast. अगर कुछ पैरेनकाइमा सेल्स है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उसमें सेल जो है फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज डिपोजिशन और इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब मुझे बताइए पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये दो सेल का स्ट्रक्चर, इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस? हाँ, you can clearly find that intercellular space in the parenchyma and intercellular space in the colenchyma. इसमें intercellular space में देखिए, intercellular space is large in case of colenchyma. अब हम sclerenchyma की तरफ बढ़ेंगे। These are composed of narrow long cells with lignified cell wall. देखिए पैरेनकाइमा में जो सेल वॉल है इसमें सेल्यूलोज होता है, और इसमें लिग्निफाइड। लिग्निफाइड इसका अर्थ क्या है? सीमेंट लाइक मटेरियल जो है उसके सेल वॉल में होता है। और स्लेरेनकाइमा के सेल जो है दे कैन डाइड आफ्टर अचीव द मैक्सिमम थिकनेस एंड दस सेल डाई। तो स्लेरेनकाइमा में सेल जो है स्पेशली डेड सेल्स होते हैं। इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट्स टू द ऑर्गन्स एंड दिस स्लेरेनकाइमा कहां पे प्रेजेंट होता है, याद है आपको? These are present in the coats of the seed. सीड के जो कोट्स है, कोकोनट का जो हार्ड कोटिंग होता है, ये स्लेरेनकाइमा से बनता है। पैरेनकाइमा के तीन टाइप्स है, सिंपल
पैरेनकाइमा, देन कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, देखिए सिंपल पैरेनकाइमा जो स्पेशलिस्ट फूड मटेरियल स्टोर करता है। क्लोरेनकाइमा is a type of parenchyma which contains the chlorophyll and takes part in the photosynthesis. And erenchyma जो है, erenchyma is a type of parenchyma especially present in aquatic plants. ये किसमें प्रेजेंट होता है? एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल लोटस। इसमें जो पैरेनकाइमा एरेनकाइमा, इसमें एयर स्पेस ज्यादा होता है, तो एयर स्पेस होने की वजह से इट प्रोवाइड्स द बायोन्सी टू द प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट जो प्लांट तैरते हैं पानी के ऊपर, तो इस एरेनकाइमा में एयर स्पेस होता है। अब सिंपल पैरेनकाइमा के बारे में देखेंगे। सिंपल पैरेनकाइमा इज कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यूज बिकॉज अदर टिश्यूज हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट। सिंपल पैरेनकाइमा को फंडामेंटल टिश्यूज भी कहते हैं, जिससे बाकी पैरेनकाइमा बनते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सेल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन जाइलम और फ्लोएम। हमने देखा है जाइलम पैरेनकाइमा और फ्लोएम पैरेनकाइमा। दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द वाटर इन जाइलम एंड फूड स्टोरेज इन फ्लोएम। फ्लोएम में ये पैरेनकाइमा सेल फूड स्टोरेज का काम करते हैं और जाइलम में वाटर कंडक्शन में मदद करते हैं। अब क्लोरेनकाइमा, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पैरेनकाइमा के टाइप्स। पहला टाइप हमने पढ़ा है सिंपल पैरेनकाइमा, दूसरा जो है क्लोरेनकाइमा, ये भी पैरेनकाइमा का टाइप्स है। इसमें जो है देखिए इट कंटेन्स द क्लोरोफिल। इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें क्लोरोफिल्स होता है और क्लोरोफिल होने की वजह से इट टेक्स पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। It is found in the leaves. It is also called as क्लोरेनकाइमा और मिजोफिल। इसे हम मिजोफिल भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप्स। क्लोरेनकाइमा दो प्रकार के होते हैं, पैलिसेड क्लोरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। पैलिसेड और इन दोनों में क्या फर्क है? अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में हमें फर्क दिख रहा है। तो पैलिसेड जो है, पैलिसेड पैरेनकाइमा जो है, इसके सेल कॉल्यूमनर है, कॉलम के जैसे। दे आर अरेंज कॉम्पैक्टली हैविंग द लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। दे हेल्प टू रिसीव द सनरेज, सनलाइट ये रिसीव करते। और दूसरा है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। इसके सेल जो है ओवल है, ओवल और राउंडेड, हैविंग द मोर इंट्रासेल्युलर स्पेस एंड दे आर अरेंज रैंडमली। ऐसे देखिए यहाँ पे पैलिसेड पैरेनकाइमा के सेल जो है इसका स्पेशियल अरेंजमेंट है, कॉलम शेप है। और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा जो है इसमें इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है सेल का। इंट्रासेल्युलर स्पेस कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। दे आर इंट्रासेल्युलर स्पेस इन विच द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। इसमें से गैस से एक्सचेंज होता है। और जो पैलिसेड पैरेनकाइमा जो है वो सनलाइट रिसीव करते हैं बिकॉज दे आर एक्टिवली टेक्स पार्ट इन क्लोरेनकाइमा इन द फोटोसिंथेसिस। अब एरेनकाइमा जो है जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा का थर्ड टाइप है, जिसमें अभी देखो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लिंक मैं आपको भेज रहा हूं, उसको आपको क्लिक करना है, ज्वाइन करना है।